Good morning to all of you. Welcome to online class of social science. Today we will continue geography chapter 5 called industry, page number 50. Industrial system. An industrial system consists of inputs, processes and outputs. The inputs are the raw materials, labor and cost of land, transport, power and other infrastructure. The processes include a wide range of activities that convert the raw material into finished product. The outputs are the end product and the income earned from it. In case of the textile industry, the inputs may be cotton, human labor, factory and transport cost. The processes include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the shirt you wear. इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट शामिल हैं. इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं. प्रोसेसेस में कई एक्टिविटीज शामिल है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं. आउटपुट फिनिश्ड प्रोडक्ट और इससे मिलने वाली इनकम है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संदर्भ में कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनपुट्स हैं. प्रोसेसेस में जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग शामिल है. स्टिच्ड गारमेंट इसका आउटपुट है. इंडस्ट्रियल रीजन्स. इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Major industrial regions of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. इंडस्ट्रियल रीजन्स का विकास तब होता है जब कई इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पास स्थित होती हैं और अपनी क्लोजनेस के बेनिफिट्स आपस में शेयर करती हैं. वर्ल्ड के प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया. इट नाउ कम टू द पेज नंबर 51. Industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. India has several industrial regions like Mumbai-Pune cluster, Bangalore-Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad-Baroda region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam-Guntur belt, Gurgaon-Delhi-Meerut region and the Kollam-Thiruvananthapuram industrial cluster. इंडस्ट्रियल रीजन्स ज़्यादातर टेम्परेट एरियाज में, पोर्ट्स के समीप और कोल फील्ड्स के पास स्थित होते हैं. भारत में कई इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन और कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. इंडस्ट्रियल डिजास्टर. In industries, accidents, disasters mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. One of the worst industrial disaster of all time occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around 00:30 am. It was a technical accident in which highly poisonous methyl isocyanate gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder, etc. इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स मुख्य रूप से टेक्निकल फेल्यूर या हैजार्डस मटेरियल के इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग के कारण होते हैं. भोपाल में 3 दिसंबर 1984 की रात में 12:30 बजे
अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर घटित हुआ था। यह एक टेक्निकल एक्सीडेंट था जिसमें यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड फैक्ट्री में से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साथ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। इसमें 3598 लोगों की डेथ हुई थी। जो बच गए थे वे आज भी कई बीमारियों जैसे ब्लाइंडनेस, इम्पायर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, कई प्रकार के कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। कम टू द पेज नंबर 52. In another accident on 23rd December 2005, due to gas well blowout in Gaokuao, Chongqing, China, 243 people died, 9,000 were injured, and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin, and lungs from the gas. 23 दिसंबर 2005 में चाइना के गाओकाओ चोंगिंग में गैस के कुएं में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 243 लोग मारे गए थे, 9,000 लोग घायल हो गए थे और 64,000 लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया था। कई लोग इसलिए मारे गए थे क्योंकि वे एक्सीडेंट के बाद भाग ही नहीं पाए और जो समय रहते भाग नहीं पाए थे उनमें से कईयों को आंखों में जलन, स्किन और लंग्स में जलन, गैस के कारण जलन हुई थी। रिस्क रिडक्शन मेजर्स, जोखिम कम करने के उपाय। डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज को इंडस्ट्रियल एरियाज से दूर रखा जाना चाहिए। People staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case of an accident occur. इंडस्ट्रीज के पास रहने वाले लोगों को एक्सीडेंट की स्थिति में टॉक्सिक और हैजार्डस पदार्थों के प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग और फायर फाइटिंग सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। टॉक्सिक पदार्थों, विषैले पदार्थों का स्टोरेज कैपेसिटी तय होनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड। उद्योगों में पॉल्यूशन कंट्रोल के उपाय अपनाए जाने चाहिए। Distribution of major industries. The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry, and the information technology industry. The iron and steel and textile industry are the older industries, while information technology is an emerging industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विश्व की प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं। आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी पुराने उद्योग हैं जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ उद्योग है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रशिया। Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जर्मनी, USA, चाइना, जापान और रशिया में स्थित हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में स्थित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रमुख केंद्र कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली और इंडिया में बेंगलुरु रीजन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू comprises various inputs, processes and outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure. The process of converting iron into
iron ore into steel involve many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. दूसरे उद्योगों की तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट शामिल है। आयरन एंड स्टील अन्य दूसरी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इनपुट में रॉ मटेरियल जैसे आयरन और कोल और लाइमस्टोन के साथ लेबर, कैपिटल, साइट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। आयरन ओर से स्टील बनाने में प्रोसेसिंग की कई स्टेजेस शामिल है। रॉ मटेरियल को एक ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। यहाँ यह हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है। इसके बाद आयरन स्टील में कन्वर्ट हो जाता है जिसे दूसरी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 53। Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire. Special alloys of steel can be made by adding a small amount of other materials such as aluminum, nickel and copper. Alloys give steel unusual hardness, toughness or ability to resist rust. स्टील काफ़ी हार्ड होता है और इसे आसानी से काटा जा सकता है, कोई आकार दिया जा सकता है और इसके तार भी बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर को स्टील में कम मात्रा में मिलाकर स्टील के एलॉय मीन्स मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। इस कारण स्टील अनयूजुअल हार्ड, टफ और रस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipments. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. स्टील मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहलाता है। हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई लगभग सभी वस्तुएं आयरन या स्टील से बनी होती है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स और ऑटो आदि स्टील से ही बने होते हैं। ऑयल वेल स्टील से बनी हुई मशीनों के द्वारा ही खोदे जाते हैं। मिनरल्स की माइनिंग भी स्टील के इक्विपमेंट से ही की जाती है। खेतों में काम आने वाले औजार भी स्टील से ही बनाए जाते हैं। आजकल बिल्डिंग्स के निर्माण में भी स्टील का यूज किया जाता है। बिफोर 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. After 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaports. This is because by this time steel work had become very large and iron ore had to be imported from overseas. ईयर 1800 के पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहाँ स्थित होती थी जहाँ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर अवेलेबल होते थे। बाद में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए आइडियल जगह वह हो गई जहाँ कोल फील्ड्स, नहरें और रेलवे पास हो। 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सी पोर्ट्स के पास फ्लैट लैंड में बनाई जाने लगी क्योंकि स्टील निर्माण का काम बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था और आयरन और दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। नाउ कम टू द पेज नंबर 54। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Banpur, Jamshedpur, Raurkela, Bokaro are situated in the region that spreads over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Orissa and Chhattisgarh. Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are other important steel centers utilizing local resources.
इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 मिलियन टन इन 1947 to 30 million tons in 2002. इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स, सस्ता लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट का लाभ लेते हुए डेवलप हुए। सभी इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जैसे भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही रीजन में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। ये राज्य है वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जो लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1947 में इंडिया का स्टील प्रोडक्शन 1 मिलियन टन था, जो 2002 में 30 मिलियन टन हो गया।